Hello everyone. Today in this video we are going to discuss Hempel Committee report on corporate governance. I am Madhu Verma and welcome you all at my YouTube channel Learning Academy of Commerce, where learning and education is imparted in an easy way. If you are new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for the new video updates. So let's begin with the reports of corporate governance. There are different committees and their recommendations on corporate governance in international context. We have already discussed the report of Cadbury Committee and Greenberry Committee on corporate governance in the earlier videos. So if you're new to the channel and you have not seen the earlier videos, I will provide the link in the description box. You can watch these videos by clicking on that link. Today in this video, we'll discuss the Hempel Committee report on corporate governance. So let's begin with it. As we have already discussed the Cadbury and Greenberry Committee report, and these committees have provided some recommendations for corporate governance. After these committees, the Hempel Committee was established, and firstly we will understand the background and need of this study. Hempel Committee was established to study and review of the criticism of reports of Cadbury and Greenberry and to reduce the regulatory burden on companies. हेम्पल कमेटी को क्यों एस्टैब्लिश किया गया? हेम्पल कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था कि कैडबरी कमेटी और ग्रीनबरी कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की गई थी, जो रिपोर्ट्स प्रोवाइड की गई थी, बिकॉज उन रिपोर्ट्स का कुछ क्रिटिसिज्म था, सो उन रिपोर्ट्स को स्टडी और रिव्यू करने के लिए हेम्पल कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया. सेकेंड मोटिव वॉज to reduce the regulatory burden on companies, because companies के ऊपर एक regulatory burden था regarding the corporate governance. So उस regulatory burden को reduce करने के लिए भी Hempel committee को establish किया गया. And to make combined code of best practices for corporate governance based on reports of Cadbury and Greenberry to review whether the code's original purpose was being achieved. हेम्पल कमेटी के द्वारा एक कंबाइंड कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिस्क्राइब किया गया, और यह कंबाइंड कोड बेस्ड था कैडबरी और ग्रीनबरी कमेटी की रिपोर्ट्स के ऊपर, बिकॉज हेम्पल कमेटी के द्वारा कैडबरी और ग्रीनबरी कमेटी रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशंस को रिव्यू और रिवाइज किया गया, और साथ में हेम्पल कमेटी के द्वारा कुछ और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की गई. सो हेम्पल कमेटी ने कंबाइंड कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाया, जिससे कि कंबाइन किया गया कैडबरी, ग्रीनबरी और हेम्पल कमेटी की रिकमेंडेशंस को. And Hempel Committee was established in 1996 and it submitted its report in 1998. Hempel Committee submitted its final report in 1998 and the chairman of Hempel Committee was Sir Ronald Hempel. As you can see in the picture, he was the chairman of Hempel Committee. He was Sir Ronald Hempel, और सर रोनाल्ड हेम्पल के नेम पर ही इस कमेटी का नेम हेम्पल रिपोर्ट रखा गया. And what are the major findings of this committee? The Hempel Committee was established in 1996 to review and revise the earlier recommendations of the Cadbury and Greenberry Committee. हेम्पल कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था 1996 में कैडबरी और ग्रीनबरी कमेटी की रिकमेंडेशंस को रिव्यू और रिवाइज करने के लिए. हिज चेयरमैन वो सर रोनाल्ड हेम्पल एंड इट्स फाइनल रिपोर्ट was submitted in 1998. So what are the major findings of this report? Here we will understand what are the major findings of this report. The first major finding of this report is the final report emphasized principles of good corporate governance rather than explicit rules in order to reduce the regulatory burden on companies and to avoid box ticking exercise so as to be flexible enough to be applicable to all companies. Good governance needs broad principles, not prescriptive rules. हेम्पल कमेटी की फाइनल रिपोर्ट ने इम्फेसाइज किया गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को, इसकी बजाय जो एक्सप्लिसिट रूल्स को, बिकॉज कंपनीज के ऊपर एक रेगुलेटरी बर्डन बहुत बढ़ गया था. सो हेम्पल कमेटी ने उस रेगुलेटरी बर्डन को रिड्यूस किया, और उसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक्सप्लिसिट रूल्स की बजाय रिकमेंड किया, इम्फेसाइज किया कि कंपनीज को गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, उनको कंप्लाई करना चाहिए, सो दैट बॉक्स टिकिंग एक्सरसाइज को अवॉइड किया जा सके.
What is box ticking exercise? Firstly, we should understand it. Box ticking exercise means a set of rules and guidelines that are fixed for every company to follow. Means इस तरह के fixed rules and guidelines जो कि हर एक कंपनी को फॉलो करने हैं. The approach of doing something just because there is rule that says that you must do it. Means इस तरह की अप्रोच जो कि यह कहती है कि यहाँ पर एक रूल है और वह हर एक कंपनी को फॉलो करना जरूरी है. So हेम्पल कमेटी ने उस बॉक्स टिकिंग एक्सरसाइज को अवॉइड किया और बिकॉज हर एक कंपनी की सिचुएशंस डिफरेंट है तो एक सेम टाइप का रूल हर एक कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता. तो उन्होंने एक इस तरह की एक्सरसाइज प्रोवाइड की जो कि फ्लेक्सिबल हो, हर एक कंपनी अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सके और अप्लाई कर सके और प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस को फ्लेक्सिबल बनाया. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीड्स ब्रॉड प्रिंसिपल्स नोट प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स. इस कमेटी के द्वारा इम्फेसाइज किया गया कि गुड गवर्नेंस के लिए ब्रॉड प्रिंसिपल्स चाहिए. ब्रॉड प्रिंसिपल्स जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ एवरी कंपनी, ना कि प्रिस्क्रिप्टिव, ना कि किस तरह के रूल्स प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स जो कि हर एक कंपनी को फॉलो करने नेसेसरी हैं और चाहे उस कंपनी की सिचुएशन डिफरेंट ही हो. तो हेम्पल कमेटी के द्वारा प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस ब्रॉड प्रिंसिपल को एम्फेसाइज किया गया प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स की बजाय. Second major recommendation of this committee was good corporate governance is not achieved by satisfying a checklist. Directors must comply with the substance as well as the letter of all best practice pronouncement. It was recognized that good corporate governance will largely depend on the particular situation of each company. हेम्पल कमेटी के द्वारा कहा गया कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर कंपनी को अचीव करना है तो वह सिर्फ एक चेकलिस्ट को सेटिस्फाई करने से अचीव नहीं होता. चेकलिस्ट मींस जिसमें कि कुछ नॉर्म्स प्रोवाइड की गई हैं जो कि गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी हैं कंपनीज के लिए. तो अगर एक कंपनी उस चेकलिस्ट को सेटिस्फाई कर लेती है तो इट डजंट मीन कि वहाँ पर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है. डायरेक्टर्स को सभी बेस्ट प्रैक्टिस प्रोनाउंसमेंट को कंप्लाई करना होगा जो उस कंपनी को कंप्लाई करनी ज़रूरी है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अचीव करने के लिए. और इसके अलावा यह भी रिकग्नाइज किया गया कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हर एक कंपनी की पर्टिकुलर सिचुएशन पर डिपेंड करता है. एक सेम टाइप का रूल हर एक कंपनी के लिए प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. तो वह डिपेंड करता है कि कंपनी की क्या सिचुएशन है एंड अपॉन द particular situation of the company we can say that there is good corporate governance और उसके अकॉर्डिंग अलग टाइप के रूल्स और प्रिंसिपल हर एक कंपनी के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं. Next recommendation of this committee is self-regulation is the preferred approach to corporate governance with no need for more company legislation. हेम्पल कमेटी के द्वारा कहा गया कि सेल्फ रेगुलेशन एक प्रेफर्ड अप्रोच होनी चाहिए गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए. सेल्फ रेगुलेशन की कंपनीज अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करें, अपने लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाएं, प्रिंसिपल्स बनाएं जो कि वहाँ पर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अचीव करने के लिए होने चाहिए. उसके लिए ज़्यादा कंपनी लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लॉज या रूल्स बनाने की नीड नहीं है. कंपनीज सेल्फ रेगुलेटेड कंपनीज होनी चाहिए जिसके द्वारा कंपनीज में वह कोड ऑफ कंडक्ट फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अचीव किया जा सके. In particular, the report favored greater shareholder involvement in company affairs. इसके अलावा इस रिपोर्ट में शेयर होल्डर के इन्वॉल्वमेंट को एम्फेसाइज किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कंपनी के अफेयर्स में. हेम्पल कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया कि शेयर होल्डर्स को अपने वोटिंग राइट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए कंपनी के इम्पोर्टेंट डिसीजंस में. मीन्स जब कंपनी अपने इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेती है देन द शेयर होल्डर्स शुड मेक यूज ऑफ देयर वोटिंग राइट्स एंड गिव देयर वोट्स इन दोज इम्पोर्टेंट डिसीजंस ऑफ कंपनी. Another key advance was in the area of accountability and audit. The board was identified as having responsibility to maintain a sound system of internal control, thereby safeguarding shareholders' investment. नेक्स्ट की एडवांस था एरिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट में. बोर्ड को यह आइडेंटिफाई किया गया कि बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कंपनी में एक इंटरनल कंट्रोल का साउंड सिस्टम मेंटेन करने में. बिकॉज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में
अच्छा सिस्टम है इंटरनल कंट्रोल का, तो वहाँ पर जो फ्रॉड्स हैं या स्कैंडल्स हैं उनके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, और जिसके द्वारा शेयर होल्डर्स ने जो इन्वेस्टमेंट की है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, उसको सेफ गार्ड किया जा सकता है। दूसरा, ऑडिट वर्क ऑल्सो बिकम्स ईजी, बिकॉज वहाँ पर एरर्स और फ्रॉड्स के चांसेस कम होंगे, स्कैंडल्स कम होंगे, और ऑडिट रिपोर्ट भी टाइमली प्रेजेंट की जा सकती है अगर साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। Further, the board was to be held account for all aspects of risk management as opposed to just the financial controls as recommended by Cadbury. इसके अलावा सैंपल कमेटी में एम्फेसाइज किया गया कि बोर्ड को रिस्क मैनेजमेंट के सभी एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना है, ना कि सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रोल। जैसे कि कैडबरी कमेटी रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया था कि बोर्ड को फाइनेंशियल कंट्रोल्स से रिलेटेड मैटर्स का रिस्क मैनेजमेंट करना है, बट हेम्पल कमेटी ने एम्फेसाइज किया कि बोर्ड को रिस्क मैनेजमेंट के सभी एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल कंट्रोल एज वेल एज द अदर मैटर्स। So after publishing this report, Hempel Committee drew up a single code of best practices, that is the combined code on corporate governance, incorporating Cadbury, Greenbury and Hempel recommendations in consultation with London Stock Exchange, which applied to all listed companies. So Hempel Committee ने अपनी कुछ recommendations provide की, as we have already discussed in the earlier slides. तो इन रिकमेंडेशंस को प्रोवाइड करने के बाद कंपनी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट को पब्लिश किया, और हेम्पल कमेटी ने एक सिंगल कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड किया, और इस सिंगल कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस को कंबाइंड कोड ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहा जाता है, जो कि इनकॉर्पोरेट करता है कैडबरी, ग्रीनबरी और हेम्पल कमेटी की रिकमेंडेशंस, और यह लंदन स्टॉक एक्सचेंज की कंसल्टेशन से प्रोवाइड किया गया, और यह कोड लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपनीज पर अप्लाई। So what is the combined code on corporate governance? Combined code on corporate governance includes the Cadbury committee recommendations plus Greenbury committee recommendations plus Hempel committee recommendations. And Hempel Committee report further added that the chairman of the board should be seen as a leader of non-executive directors, means जो बोर्ड का चेयरमैन है वह नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लीडर के रूप में काम करेगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक कंसिडर यूज ऑफ देयर वोट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो शेयर होल्डर्स है उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि हेम्पल कमेटी रिपोर्ट ये रिकमेंड करती है कि शेयर होल्डर्स को अपने वोटिंग राइट्स का यूज करना चाहिए कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में। सो इसी तरह से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे आर आल्सो द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी, सो उनको भी रिस्पॉन्सिबल ही यूज करना है अपने वोटिंग राइट्स का। ऑल काइंड्स ऑफ रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग पेंशन शुड बी डिस्क्लोज्ड, बिकॉज रेम्यूनरेशन के डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग भी नॉर्म्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को सभी तरह के रेम्यूनरेशन को डिस्क्लोज करना है जिसमें कि पेंशन भी इंक्लूडेड है। So these are the major findings of this committee. So this committee report also includes a discretionary comply or explain code. What is discretionary comply or explain code? As we have already discussed in the earlier slides, that this committee provide a combined code for best practices. So combined code of best practices was provided in consultation with London Stock Exchange. So it applied to all the companies which were listed on London Stock Exchange. तो यह उन सभी companies पर apply होना था जो कि London Stock Exchange पर listed companies हैं। तो जब भी एक कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है उनके बीच में एक लिस्टिंग अग्रीमेंट साइन किया जाता है, और जब लिस्टिंग अग्रीमेंट साइन किया जाता है तो हर एक स्टॉक एक्सचेंज के कुछ लिस्टिंग रूल्स हैं जो कि उस लिस्टेड कंपनी को फॉलो करने होते हैं। तो हेम्पल कमेटी में डिस्क्रिशनरी कंप्लाई और एक्सप्लेन कोड इंक्लूड किया गया, एंड व्हाट इज दैट? The stock exchange listing rules require a listed company in the UK to include the following in its annual report and accounts. What are the rules? The first one is a narrative statement of how it has applied the principles set out in the combined code.
providing the explanation which enables its shareholders to evaluate how the principles have been applied. कंपनीज को एक नैरेटिव स्टेटमेंट देनी होगी कि उन्होंने जो कंबाइंड कोड के प्रिंसिपल्स हैं उनको कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है, साथ में वह एक्सप्लेनेशन जो वह प्रोवाइड करेंगे वह एक्सप्लेनेशन शेयर होल्डर्स को हेल्प करेगी यह इवेल्युएट करने में कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने अपनी मनी इन्वेस्ट की है वहां पर क्या उन कंबाइंड कोड के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जा रहा है और उनको कैसे अप्लाई किया जा रहा है. Second statement was to whether or not it has complied throughout the accounting period with the combined code provisions. If it has not complied, it must specify the provisions with which it has not complied and give reasons for non-compliance. Second statement कंपनीज को देनी है कि क्या उन्होंने अकाउंट थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड, जो भी अकाउंटिंग पीरियड में फॉलो करते हैं उसमें उन्होंने कंबाइंड कोड के प्रोविजंस को अप्लाई किया है या नहीं किया है. अगर किया है तो किस तरह से किया है, लेकिन अगर नहीं किया है देन कंपनीज को वह प्रोविजन स्पेसिफाई करने होंगे जिन प्रोविजंस को उन्होंने कंप्लाई नहीं किया और साथ ही नॉन कंप्लायंस के रीजंस को भी प्रोवाइड करना होगा कि उन प्रोविजंस को कंप्लाई क्यों नहीं किया गया, उसके पीछे क्या रीजन है. तो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स लिस्टिंग रूल्स जो कि कंपनीज को प्रोवाइड करने होंगे अपने स्टेटमेंट्स में. फर्स्ट कि उन्होंने कंबाइंड कोड के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया है तो उन्होंने किस तरह से किया है ताकि शेयर होल्डर्स उसको इवेल्युएट कर सकें. और सेकंड, अगर कंप्लाई नहीं किया है तो उसका रीजन, नॉन कंप्लायंस का रीजन कंपनीज को स्पेसिफाई करना होगा. So this approach to compliance is known as comply or explain code that was included in Hempel Committee report. So these are the major findings of this committee. I hope you must have understood this committee report very well. In the next video, we will discuss Sarbanes-Oxley Act. So thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel, like the video and share it with your friends. And please give your comments in the comment box about how did you like the video.